Hello everyone, my name is Manoj Chaudhary and in today's Java introduction we will be seeing the concept operators used in Java programming language. So before starting, let us understand what operators actually are. Operators are some symbols which are used to manipulate or perform some operation on the operands. So what are operands? Operands, these are our variables. So if I am writing a plus b and I am using the plus operator over there, then a and b becomes my operands, which in our case are actually our variables. So there are different types of operators available in Java, which you can see on your screen. Unary, there comes increment and decrement under the unary, then arithmetic, shift operator, relational, bitwise, logical, ternary and assignment. Let us understand the arithmetic operator first. Arithmetic operators, these are related to mathematics. So mathematics में क्या होता है? Plus, minus, multiplication, division. One more operator has been introduced. It is your percentage. Percentage stands for your modulus operator. So in this basic program of arithmetic, I've written a program, a class name as arithmetic. Then I've declared a main function. Then int a and int b, these are my two variables, and in this case these will be our operands also. So a and b have been assigned a value of 10 and 5 respectively, and in the line system.out.println I am passing a plus b. Just remember one thing, system.out.println में आप जो भी लिखोगे, if you are writing those in the bracket with the double inverted commas, in the double inverted commas, so वो same value आपके स्क्रीन पे प्रिंट होगा. डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप जो भी लिखोगे सेम एज इट इज ऑन योर कमांड प्रॉम्प्ट में प्रिंट हो जाएगा. बट अगर आप डायरेक्टली वेरिएबल पास कर रहे हो, लाइक आई पास ए प्लस बी, तो उसका वैल्यू को मैनिपुलेट होकर ऑपरेशन परफॉर्म होकर डायरेक्टली सिर्फ वैल्यू मुझे पास मिलेगा, ए प्लस बी नहीं मिलेगा. यहाँ पे ए प्लस बी का एडिशन इन दिस केस आई विल बी गेटिंग विथ. So similarly for a minus b I am getting with 5, then a multiplication by 50, a divided by b 2 and a percentage b I will be getting 0. अभी 0 क्या है and how we are getting with 2 and 0, इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है. So let us see it with an example. So I will be opening a paint window over here and just will take the same example. In this case we have taken a value as 10 and b we have taken as 5. So अगर मैं a by b लिखता हूँ तो क्या होगा, a divided by b it tends to become as 10, which in our normal way we will be writing 10, then it will be 5 to the 10 and last will be 0. So a divided by b will give you the result in the quotient part. So divide करने के बाद आपको जो quotient part मिलता है that will be your result for a divided by b. Similarly if I am writing a percentage b, तो सेम केस में जो मुझे ना नीचे रिमाइंडर में मिलेगा that will become my a percentage b का result. So always remember a divided by b will give you the quotient part and a percentage b will give you the remainder part. So let us take one more example. I will divide 11 by 2. So in this case it will become 11 divided by 2, 2 5 are 10 and the remainder will be 1. So 11 divided by 2 will direct me with the result of 5, and whereas 11 percentage 2 will direct me with a result of 1. होप सो आपको ये समझ में आया होगा परसेंटेज एंड डिवाइड के बीच में क्या डिफरेंस होता है. सो द नेक्स्ट पार्ट आई एम राइटिंग लाइन system.out.println and in bracket 10 multiplication 10 divided by 5 plus 3 minus 1 multiplication 4 divided by 2. इसका रिजल्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे एक रूल फॉलो होगा जो आप बेसिकली मैथमेटिक्स में यूज करते आए हो. सो जस्ट पॉज द वीडियो ओवर हियर, टाइप इन द कमेंट सेक्शन द आंसर which you are getting with. So coming forward, the answer to this question is 21 and it will be according to the BODMAS rule. So what BODMAS rule actually says us is कि पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, then we will come to the division part, then multiplication, then addition and then subtraction. So आप सॉल्व करके देखो, you will get with the result as 21. Then the next coming part or operators are your relational operators. तो हमारे पास कुछ 6 operators है जो relational operator के category में आ जाते हैं, and always remember relational operator are used to compare the value of a variable and hence these are also called as your comparison operator. So operator में पहला देखो, it is been written with equal to
and the operator uses double equal to sign. Okay. Then for not equals to exclamatory mark, equal to sign is been written, and respectively हर एक के लिए वहाँ पे मेंशन किया है for greater than, less than, greater than equals to and less than equal to. तो दो वैल्यू को अगर आपको कंपेयर करवाना है इक्वल टू ऑपरेटर आप वहाँ पे यूज कर सकते हो. तो इफ आई एम राइटिंग x इक्वल्स टू y which will be read as x equals to y, then x और y का वैल्यू अगर सेम हुआ देन एंड देन ओनली हम लोग को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी भी इफ के साथ, या फिर अगर हम लोग ये कंडीशन लूप्स में लगा रहे हैं. सो इफ क्या होता है, लूप्स क्या होता है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. सो जस्ट रिमेंबर रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू विथ अनदर वेरिएबल और वेरिएबल विथ वैल्यूज. The next coming part is your logical operator. Logical operator are used to determine the logics between the variables. So and, or, not. These three logical operators are with us in Java, and we can use these logical operators to manipulate our data. Hence, this logical operator can be used with our relational operator also. So in this example over here, x less than 5 and x less than 2, बीच में हम लोगों ने लॉजिकल एंड लगाया और वी हैव आल्सो मेक यूज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर हियर विच इज लेस देन. सो रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर कैन बी कंबाइंड. सो जस्ट रिमेंबर, दो रिलेशनल ऑपरेटर के बीच में आपको लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करना होगा. तो लॉजिकल एंड से क्या होता है, लॉजिकल एंड में हमें रिजल्ट तब मिलेगा जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगे. मतलब लॉजिकल ऑपरेटर के लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो दो कंडीशन हम लोग मेंशन कर रहे हैं, अगर वो दो कंडीशन ट्रू होता है देन वी विल गेट विथ आवर रिजल्ट एज ट्रू. Let us take an example and let us study this with the help of a truth table. So I will be drawing a truth table over here. This is my table and I will be drawing some part over here. Okay, since I am using the two variables, so the actual data जो मेरे इसमें बनेगा, जो एक्चुअल नंबर ऑफ इनपुट्स एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जो बनेंगे यहाँ पे, दैट विल बी 4. हाउ 4? सी आई हैव टेकन द इनपुट एज इन दिस एग्जांपल एज x एंड y. तो टोटल कितने इनपुट्स हैं हमारे पास? 2 है. तो 2 raised to power 2 हम लोग को वो चेक करना पड़ता है एंड टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैन बी परफॉर्म एज 4. अगर मेरे पास 3 इनपुट होते हैं, सपोज x, y एंड z, तो टोटल इनपुट 3 हो जाते हैं. देन 2 raised to 3 it would become as total number of possible combination of these three input will 8. So in this case, since I am using two variables, and directly I will apply the symbols over here. Okay, this indicates your OR and this indicates your NOT. Always remember, आपका जो NOT है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल के ऊपर काम करेगा. अगर आप ऐसे लिख देते हो दिस विल नॉट वर्क, बिकॉज ये कोई प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं. अगर आप इसके बीच में कोई दूसरा ऑपरेटर लाइक एंड और अप्लाई करो देन दैट विल बी फाइन, लेकिन ये वाला फॉर्मेट विल बी रॉन्ग. सो दिस एंड इट इंडिकेट्स एक्स और वाई के बीच में मैंने क्या अप्लाई किया, एंड अप्लाई किया, एंड दिस और इंडिकेट्स एक्स एंड वाई के बीच में आई हैव अप्लाइड विथ और ऑपरेटर. देन आई विल टेक द वैल्यूज 0 0 0 1 1 0 एंड फाइनली 1 1. ओके, 1 ओवर हियर. तो एंड का कंडीशन क्या बोलता है, मेरा रिजल्ट तभी ट्रू होगा, आई विल गेट द रिजल्ट ट्रू ओनली व्हेन बोथ द कंडीशन, बोथ द वेरिएबल्स विल बी ट्रू. तो कौन से इसमें ट्रू हो रहा है, मतलब 1 और 1 दोनों इसी केस में ट्रू हो रहा है, एंड हेंस इसी वाले पार्ट में हमें ट्रू रिजल्ट में मिलेगा. एल्स ऑल पार्ट विल बिकम एज 0, क्योंकि 1 एक यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट ट्रू है एंड सेकंड 1 इज फॉल्स. यह 1 इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, हेंस एंड यहाँ पे तो दोनों ही 0 0 है, तो आउटपुट विल बी 0. For the OR part, what OR says is कि दोनों में से अगर एक भी input true है, then my result will be true. So both the inputs are 0 and 0. Then 0 1, one output is 1. Sorry, one input is 1, and over here also one input is 1, and here both the inputs are 1. Hence 0 1 1. What not says is कि अगर मेरा इनपुट 0 है तो मैं उसे 1 में कन्वर्ट कर दूंगा, अगर मेरा इनपुट 1 है तो मैं उसे 0 में कन्वर्ट कर दूंगा, मीन्स चेंज कर देंगे हम लोग बिट्स को. तो 1 1 0 एंड फाइनली 0. ये कैसे आया, मैंने नोट किया सिर्फ x का. x का फर्स्ट बिट क्या है, 0 है, एंड ये
उसका चेंज होके 1 हो गया। यार ऑल्सो 0 है, यहाँ पे चेंज होके 1 हो गया। यह 1 है हेंस 0, यहाँ पे भी 1 है हेंस 0। सेम फॉर डूइंग नॉट विथ y, इसका हो जाएगा 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 एंड 1 का 0। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर लॉजिकल ऑपरेटर्स, कैसे काम करते हैं। तो जस्ट रिमेंबर एंड और नॉट का कैसे कंसेप्ट काम रहेगा। So in this case, I'll take an example for this same question. We are taking x and y, two variables with respectively value as 5 and here इसका हम लोग ले लेते हैं 7, ये जो भी आपको लेना है। तो अगर मेरा कंडीशन ऐसा है कि x greater than y, sorry, x greater than 5 and y greater than 6, ऐसा, तो इस केस में कैसे मैच होगा। x का वैल्यू क्या हमारा एक्चुअल में वैल्यू उसका 5 है, सो 5 ग्रेटर देन 5 एंड 7 ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है ये सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है, बट द सेकेंड पार्ट हैज बीन सेटिस्फाइड। तो ये वाला 1 है, ये वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या अप्लाई किया है, वी हैव अप्लाइड एंड। तो एंड में क्या बोलते हैं, दोनों ही 1 होंगे तो ही मैं रिजल्ट 1 दूंगा, नहीं तो नहीं देने वाला। सो फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट अगर हम लोग ने कहीं पे इफ में या वाइल लूप्स कहीं पे भी लूप्स में अप्लाई किया होता तो मुझे रिजल्ट में फॉल्स आता एंड हेंस मेरा वो लूप या मेरा फॉल्स इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। सो ओवरऑल रिजल्ट फॉर 0 एंड 1 इज 0। अगर यहीं पे मैं और अप्लाई कर देता तो मुझे आंसर में ट्रू आता, बिकॉज 0 और 1 दोनों में से एक ही 1 चाहिए, तो मुझे आउटपुट में 1 मिल जाता। So this was all about your logical operator. Let us see the last part also. We'll take an example over here. See, if I would have written like this, okay, I नहीं exclamatory लिखना है वहाँ पे, exclamatory x less than 5, okay, less than 4 ऐसा मान लेते हैं, if less than 6, let us take this as an example, and or y greater than 2, ये ठीक है, ये मान लिया। x की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी है 5 एंड y की वैल्यू क्या रखी थी 7, तो दोनों कंडीशन देखो ट्रू होंगे। 5 लेस देन 6 है, ऑफ कोर्स 6 है तो इसका वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इसे 1 को ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 7 ग्रेटर देन 2 है क्या, 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, हेंस इसका वैल्यू भी मुझे 1 आता। 1 और 1, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क को भूलना मत। तो 1 और 1 का रिजल्ट क्या है, दोनों में से एक ही, और में तो दोनों में से एक ही 1 चाहिए, तो दोनों ही 1 है, वेल एंड गुड। लेकिन यहाँ पे हम लोग ने नॉट अप्लाई कर दिया, एंड नॉट क्या बोलते हैं, अगर 1 आया तो मैं उसे 0 में कन्वर्ट कर ही दूंगा, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आउटपुट हमें एज इन 0 मिलता। So this was all about your logical operator. Hence we will be moving to our next operator, which are your assignment operator. Assignment operator, as the name suggests, कि ये कुछ values assign करेंगे किसे, किसी भी variable को। Always remember एक चीज यहाँ पे रूल है कि राइट हैंड साइड का जो वैल्यू होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले को दे दिया जाएगा। राइट हैंड साइड वैल्यू विल बी गिवन टू योर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। तो यहाँ पे देखो int x इक्वल्स टू 10, राइट में क्या है 10 है, लेफ्ट में क्या है x है, तो ये 10 वैल्यू हम लोग दे देंगे किसे, x को, ऑपोजिट नहीं होगा, x की वैल्यू 10 को नहीं दे सकते, एंड ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर रूल कि 10 और राइट हैंड साइड वैल्यू विल बी गिवन टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट hand side. Okay, some of the operators which are related to your assignment operator are seen in this following video. Equals to, plus equals to, minus equals to, and see from the second row के बाद जितने भी नीचे आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, these are also called as your short hand operators. Okay, अब मीनिंग समझते हैं इनका क्या है। Let us shift to the paint एंड यहाँ पे आके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सी, अगर आपको एक रूल और मैं अभी बताने वाला हूँ। देखो, इक्वल्स टू ऑपरेटर जो है वो असाइनमेंट के लिए, असाइनमेंट के लिए यूज होता है, असाइन करता है कुछ वैल्यू किसी चीज़ को। ओके, बट दैट वैल्यू जो राइट हैंड साइड में होगा वही वैल्यू हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शो कर सकते हैं, फिर पास कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू का मीनिंग क्या है, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज योर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या मतलब क्या है, इफ आई एम राइटिंग x इक्वल्स टू x प्लस 3, तो अगर मैं उसे ऐसे भी लिख दूंगा x प्लस इक्वल्स टू 3, तो उसका मीनिंग सेम ही होगा। x इक्वल्स टू x प्लस
5 ऐसा कुछ मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं। तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ x प्लस इक्वल्स टू 15, तो दोनों का मीनिंग सेम ही होने वाला है, बट एक चीज डिफरेंट है कि इनका फॉर्मेट चेंज हो रहा है बस, बट द ओवरऑल कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। वैल्यू 15 ही आएगा x में, इंक्रीमेंट x जो x का वैल्यू है वो x से इंक्रीमेंट होकर उसमें 15 ही ऐड होगा। तो डजेंट मैटर कि यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज किया। सो सपोज ये ऐसा है 15। एक चीज और, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर जो असाइनमेंट का पार्ट आ जाता है, कब अप्लाई कर सकते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल है और इक्वल टू के जस्ट राइट साइड का जो वेरिएबल है वो दोनों सेम होंगे, देन एंड देन ओनली अंडर दैट कंडीशन ओनली शॉर्ट हैंड कैन बी अप्लाई। अगर ये ऐसे होता कि इस x की जगह यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे y होता, तब मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर पाता। जस्ट रिमेंबर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वल टू शुड बी मतलब मैचिंग, नॉट इक्वल, शुड बी मैचिंग। तो दोनों वेरिएबल सेम होंगे, देन एंड देन ओनली हम लोग शॉर्ट हैंड अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द रूल एंड इट मस्ट बी फॉलोड। तो हर चीज़ के लिए आप प्लस के लिए अप्लाई कर सकते हो, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, देन ये जो एंड और आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस आर योर बिटवाइज। ये आगे हम लोग देखेंगे, ये बिटवाइज वाले पार्ट में आ जाते हैं, लेकिन जस्ट रिमेंबर कि ये इनका कंसेप्ट सेम है। सिंबल एक एंड ये यूज़ किया, एक और का स्लैश, सॉरी स्ट्रेट लाइन यूज़ किया, लेकिन मीनिंग सेम होगा इनका फिर भी। ओके, सो कमिंग एज आई सेड कि इन दोनों का मीनिंग सेम होगा एंड सेम फॉर द रिस्पेक्टिवली coming portion. Okay, coming to the next operator, these are called as your ternary operator. Okay, ternary operator क्या बोलता है? Ternary operator समझने के लिए we will have to understand the concept of if and else. So coming over here, if and else के पार्ट में आ जाते हैं। देखो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, if और else का हम लोग बाद में पूरे देखने वाले हैं। तो if और else में ये इसका सिंटैक्स होता है, if कंडीशन, देन ब्रैकेट्स में इसका कोड, जो भी कोड होगा वो हम लोग अभी देखने नहीं वाले। एल्स जस्ट अंडरस्टैंड द सिंटैक्स फॉर इट, एल्स और उसका कोड आ जाएगा। शॉर्ट छोटा कर देता हूँ इसे। ओके, इफ में हम लोग कंडीशन डालते हैं। कंडीशन क्या हो सकता है? कंडीशन कुछ भी हो सकता है। इफ x इज ग्रेटर देन 5 एंड मतलब अगर हम लोग को लॉजिकल ऑपरेटर भी अप्लाई करना है, एंड y इज लेस देन 6, ऐसा कुछ भी एक कंडीशन आएगा। जब ये कंडीशन ट्रू होगा, जब इस कंडीशन का रिजल्ट हमें 1 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे और भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर ये कंडीशन सही है, कंडीशन ट्रू है, सच है, देन हम लोग इफ वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे एंड इन दैट केस एल्स वाला पार्ट नहीं होगा। अगर इफ एग्जीक्यूट होगा तो एल्स को हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करते। वैसे वैसा देख ले इसे, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका कंडीशन का आउटपुट जो है वो रिजल्ट में 0 आ रहा है, तो मतलब इफ वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड देन हम लोग एल्स वाले पार्ट को क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। तो जस्ट रिमेंबर, अगर इफ एग्जीक्यूट हो रहा है कंडीशन ट्रू होके, देन एल्स नहीं होगा। अगर इफ का कंडीशन फॉल्स है तो इफ नहीं होगा, एल्स एग्जीक्यूट होने वाला है। सो इसे ही मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मतलब इसका देखो सिंटैक्स देखो, इफ एल्स मतलब बहुत ज्यादा लाइंस ऑफ कोड ले रहा था, हम इसे शॉर्ट में बनाने के लिए यूज करते हैं द ऑपरेटर विच आर आवर टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या बोलता है कि उस इफ एल्स वाले पार्ट को हम लोग एक ही लाइन में क्यों ना लिख दें। जस्ट एक एग्जाम्पल ओवर हियर, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे शो किया। ओके, द एक्सप्रेशन और द सिंटैक्स फॉर इफ एंड टर्नरी ऑपरेटर इज, पहले हम लोग को एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है। एक्सप्रेशन मतलब ये हो गया हमारा कंडीशन। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन मार्क देख के जिस पार्ट को एग्जीक्यूट कराना है, जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होगा और ये वाला फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होगा। मतलब 3 एक्सप्रेशन आएंगे, 3 ऑपरेंड्स बोल सकते हैं एक तरीके से हम लोग। सो एक्सप्रेशन 1 विल बी आवर कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, क्वेश्चन मार्क के जो राइट में है दैट एक्सप्रेशन 2 विल बी एग्जीक्यूटेड, एल्स जो कॉलन के राइट साइड में है दैट पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। फॉल्स देखो, ट्रू होने पे ये वाला, फॉल्स होने पे ये वाला पार्ट। ओके, सो एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, एंड कंडीशन क्या है उसके ऊपर भी, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, कोई भी एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो कहीं पे यहाँ पे हमें स्टोर करना पड़ेगा। सो इन दिस एग्जांपल यू हैव टेकन कि हम लोग ने एक देखो क्लास नहीं बनाया, मैं डायरेक्टली ओवरऑल समझाने के लिए बोल दिया। इंट ए एंड बी नाम के 2 वेरिएबल है, एंड ए में मैंने 10 वैल्यू स्टोर करवाया, तो ए की वैल्यू 10 हो गई। बी में मैंने क्या करवाया, देखो ए ग्रेटर देन बी। ओके, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, बी हम लोग ने डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू नहीं दिया ना अब तक,
तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, बी नहीं लेता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस 9, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ए ग्रेटर देन 9, तो ये कंडीशन हो गया मेरा। अब चेक करते हैं 10 ग्रेटर देन 9 है क्या, यस कंडीशन इज ट्रू। तो मैं क्या बोला, क्वेश्चन मार्क के जो राइट वाला है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये वाला जो है वो रिजल्ट में किसे मिलेगा, बी को। अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 20, एंड वही उसी को हम लोग ने नेक्स्ट लाइन पे system.out.println के थ्रू प्रिंट करवा दिया। एंड एज आई सेड, इसका जो रिजल्ट आएगा इट विल बी लाइक दिस कि वैल्यू ऑफ बी इज कॉलन 20। अब वो क्यों, देखो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर जो प्रिंट करवाया है इट विल बी प्रिंटेड सेम ऑन द योर कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्लस ऑपरेटर यूज करके मैंने जो वैल्यू है 20 वो इसके साथ आगे कॉन्कैटिनेट या अटैच करवा दिया है। सो प्लस ऑपरेटर सिर्फ आपका एडिशन नहीं परफॉर्म करता, कॉन्कैटिनेट भी करवा देता है। ओके, जस्ट रिमेंबर दैट। नेक्स्ट वाला कंडीशन देख लो क्या है, a लेस देन 10, तो 10 लेस देन 10, ऑब्वियसली नॉट, 10 इक्वल्स टू 10 हो सकता है लेकिन लेस देन 10 तो कभी नहीं होगा ना, 10 से कम है, ऐसा नहीं होता। तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स पे मैंने क्या बोला है, कॉलन के जो राइट वाला है वो एग्जीक्यूट होके यहाँ पे बी को मिलेगा। तो इन दिस केस द आउटपुट प्रिंटेड विल बी वैल्यू ऑफ बी इज 30। ओके, सो दिस वाज योर small program for using ternary operator, conditional operator also, and which is used in alternative form for if and else. So thank you so much for watching this video. Hope you like it. If yes, give it a thumbs up, like it, share it, subscribe.